السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مولانا سلمان شاہ مکی۔ دوستو، کلاس 9 کی تفسیر جیسے ہماری چل رہی تھی، ایک رکوع ہو چکا تھا، اب اگلی رکوع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی تھی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ یعنی میں نے پہلے بتا چکا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر کے مشرق کی جانب چلی گئی تھی جب عبادت کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پردہ ڈالنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام غسل کی نیت سے انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا۔ تو جیسے میں نے پہلی تفسیر میں آپ کو یہ پہلی بات بتا چکا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس روح آیا، اس نے فرشتہ آیا، فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے آستین میں روح جیسی پھونکی تو پھونکتے ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ظاہر بات ہے ایک پاکیزہ عورت اس طرح تو کوئی برداشت نہیں کر سکتی، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی کلمات کہیں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ پاکیزہ سے مراد یعنی اپنے نسب اور اخلاق کے لحاظ سے سب سے اونچے مرتبے پر ہوں گی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں۔ ظاہر بات ہے انسان کی پیدائش کا عام طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے ہو جاتا ہے، لیکن جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو انسان کی پسلی سے پیدا کیا، تو اس میں بھی انسان کا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے کہ میں بغیر باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اپنی قدرت کا مظاہرہ اور اپنی قدرت کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بغیر باپ کی بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، رحمت کا مظاہرہ کریں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہی ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا، پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری ہو جاتی۔ ظاہر بات ہے ایک انسان ایک عورت کو کنوارے کی صورت میں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو بچے کا آ جانا ایک بے چینی سے ہوتی ہے، ویسے بھی انسان کو اپنے بارے میں بد دعا نہیں دینی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اتنی بے چینی تھی کہ بے چینی کے عالم میں انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں بھولی بصری ہو جاتی یا مر جاتی، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
वहुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्ഇन नख़लति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिय्या, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, उसमें पकी हुई ताज़ा खजूरें तुम पर झड़केंगी। इसकी सब तफसीर और सारी तफसीर मैं पहले ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। और अगर लोगों में किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोज़े की मन्नत मानी है, इसलिए मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। यानी पहले दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में दौर में ये था कि जो भी मन्नत का कोई रोज़ा मानता तो उसमें तो ये बात थी कि उसमें बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते थे। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने रोज़ा माना है, क्योंकि उनके हाथ में बच्चा था, तो ज़ाहिर बात है हर इंसान पूछता है कि कहाँ से आया, तो उन्होंने इशारे से कहा कि मैंने रोज़ा माना हुआ है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की दौर शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्या। फिर वो उस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई। वो कहने लगी, मरियम तूने तो बड़ा गज़ब ढाया, यानी तूने एक बहुत अजीब चीज़ लेकर आई हो, ये कहाँ से आया। या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया। ए हारून की बहन, एक रिवायत में आता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून था। और दूसरे ये भी मुमकिन है कि मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत हारून की औलाद में से है, तो वो नसब की तरफ से उनको ये बात मिली कि आप तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बहन हैं, आप ऐसे क्यों काम कर रही हैं। एक तो नसब की वजह से, दूसरा ये रिवायत में मिलता है कि हज़रत हारून इनके भाई थे, यानी वो भी बहुत पाकीज़ा और मुत्तकी इंसान थे, इनके वालिद भी इनकी वालिदा भी। तो उन्होंने कहा कि ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तुम्हारी कोई माँ बदकार औरत थी, यानी ना आपकी वालिदा नऊज़ुबिल्लाह ऐसी थी, ना आपके भाई, ना आपके बाप, तो आपने ऐसे काम क्यों किया। फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। इस पर मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। यानी जब ज़्यादा बातें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को होने लगी, उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछो जो बातें भी हैं। तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा कैसे बोलेगा, हालांकि ये अभी तो छोटा है, कुछ ही दिनों का है, ये कैसे बोलेगा। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने इस बच्चे को गोयाई दी। उसने फ़ौरन कहा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। उस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। ये वो छोटा बच्चा कह रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। और जहाँ भी मैं रहूँ मुझे बाबरकत बनाया, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। ये वो बच्चा अभी बातें कर रहा है। बच्चा कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। और मुझे अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, मुझे सरकश और संगी दिल नहीं बनाया, यानी मुझे अपने माँ बाप के ख्याल करने का बनाया है कि मैं अपने वालिदैन का ख्याल करूँ, और मुझे सरकश और नऊज़ुबिल्लाह कोई गलत इरादे से नहीं किया कि जैसे कि आप लोग, यानी वो लोग जो सोच रहे थे। वस्सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। और अल्लाह की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए हैं, जैसे कि हमारा अकीदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए हैं। क्या क़ुर्ब क़ियामत में वो आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, दज्जाल के बाद फिर उनको मौत आएगी। मौत के बाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही एक जगह खाली है, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। यानी वहाँ पर 4 किस्म की कब्रें हैं। पहली कब्र तो नबी अलैहिस्सलाम की है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, अबू बकर की है, फिर उमर फ़ारूक। सबसे पहली जगह खाली है अभी भी। तो वो क़ुर्ब क़ियामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, क़ियामत के आने से पहले इस दुनिया से जब चले जाएंगे, उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ दफन किया जाएगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़ि लज़ी फ़ीही यमतरून। ये है ईसा इब्न मरियम और उनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है कि इसमें लोग झगड़ रहे हैं।
यानी नबी अलैहिस्सलाम से तरह तरह के सवाल किया करते थे, तो अल्लाह ने तफसील के साथ हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना दिया। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह की शान ये नहीं कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी ज़ात पाक है। जब वो किसी बात का फ़ैसला कर लेता है तो बस उसे ये कहता है हो जा, चुनाचा वो हो जाती है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और ए पैगंबर लोगों से कह दो यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी परवरदिगार, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तिलाफ डाल दिया है, चुनांचे जिस दिन ये एक ज़बरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया। यानी कुर्ब क़यामत में सब कुछ हो जाएगा और सब हिसाब सबको मिलेगा। फिर उस वक़्त पता चल जाएगा कौन इंसान सीधे रास्ते पर था, कौन गलत रास्ते पर था। अस्मि बिहिम व अबसिर यौम यअतूनना लाकिन ज़ालिमून यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन। जिस रोज़ ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। वअन्ज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्रु व हुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम ला युमिनून। और ए पैगंबर इनको उस पछतावे के दिन से डराएं जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक़्त गफलत में हैं और ईमान नहीं ला रहे। यानी अल्लाह ताला फरमाना चाह रहे हैं कि देखो ए नबी आप इनको समझाएं, इनको बताएं कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला इन्हें आज़ाब देंगे तो फिर उस वक़्त पछतावे के अलावा कोई बात नहीं होगी। तो पछतावे से अच्छा ही है कि आदमी पहले इस्लाम और ईमान कबूल कर लें। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजऊन। यकीन जानो कि ज़मीन और उस पर सारे रहने वालों के वारिस हम ही होंगे और हमारी तरफ ही इन सबको लुटाया जाएगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुर्ब क़यामत वाले दिन सारे के सारे लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और सबका सभी मैं वारिस होऊंगा, मैं ही बादशाह होऊंगा, मेरी ही बादशाहत रहेगी और सबकी बादशाह टूट जाएगी और हमारी तरफ सबको लौट कर आना है। यानी चाहे कोई ईसाई हो, कोई क्रिश्चन हो, कोई मुसलमान हो, कोई यहूदी हो, किस तबके का भी इंसान हो, अल्लाह के सामने कल क़यामत वाले दिन उन्हें आकर हाजिर होना है। तो ये एक रुकू हमारा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 रुकू हमारे हो गए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें और जो बात आपको समझ में नहीं आती तफसीर के लिहाज से, तर्जुमे के लिहाज से, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी देखे जाएंगे और आपका उसमें हल भी निकाला जाएगा। ठीक है, अब अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।